Okay, so we will start with new chapter today, that is current electricity. थोड़ा सा slow जाऊंगा मैं because if somewhere you do not remember concept, तो concept introduce वापस कर दूंगा and then we can go ahead solving problems. First question: an ammeter of resistance 20 ohm gives a full scale reflection when 1 milliampere current flows through it. What is the maximum current that can be measured by connecting 4 resistors each of 16 ohm in parallel with the ammeter? तो हमारे पास एमीटर है. बेसिकली आपको ये बताना चाहिए कि यू कैन कन्वर्ट galvanometer into an ammeter by connecting a small resistance in parallel to it. आपको याद होना चाहिए कि galvanometer क्या होता है. So galvanometer is a device which measures small current. So you have galvanometer here. Okay. Normally it measures current in the range of microampere or milliampere. तो अगर हमको इसको एमीटर बनाना है तो what happens is ये galvanometer में एक delicate helical spring होता है और it gets damaged if you pass large current through it. तो हमको यहाँ पे जो करंट आ रहा है let us say I, इसको bypass करवाना है तो हम parallel में एक small resistance लगा देते हैं. Okay, so it becomes ammeter. Now let's say ये जो I current है उसका एक part IG goes through galvanometer और remaining जो है IS is a shunt. Shunt मतलब resistance in parallel को shunt बोलते हैं. तो current IS goes through parallel resistance. Let me say this is R equivalent. And as you know, according to the question, अभी आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपने 4 रजिस्टर्स पैरेलल में लगाए हैं, 4 रजिस्टर. तो R equivalent जो है यहाँ पे, this is nothing but you have 4 resistances, 1, then 2, 3 over here, and then you have 4th over here. So you have in total 4 resistances in parallel. Sorry. So you have 4 resistances in parallel. और ये R equivalent है. तो 16 ohm, 16 ohm, 16 ohm, 16 ohm, ये 4 parallel में है. So R equivalent, you know, if you have 4 resistance in parallel, therefore 1 upon R equivalent is 1 by 16 plus 1 by 16 plus 1 by 16 and plus 1 by 16. तो आपको मिल जाएगा 1 upon R equivalent as 4 by 16. So you will have R equivalent as 4 basically, क्योंकि ये 1 by 4 है तो 4 ohm मिल जाएगा. तो आपके पास R equivalent की वैल्यू भी है 4 ohm और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो 20 ohm दिया है. ओके, और गैल्वेनोमीटर करंट 1 मिलीएम्पियर बोला है. ओके, और आपको मैक्सिमम करंट पूछा है. तो हाउ टू सॉल्व दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेम्बर वन थिंग कि जब हमने शंट में, अभी आप इसको R equivalent बोलो या इसको RS बोलो, doesn't matter if you call it as RS also, shunt या फिर R parallel. Okay, anyways, तो अगर आपको याद होगा जब आप 2 रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगाते हो, 2 को, 4 को, 6 को, जितने भी हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी हो, if you are connecting them in parallel, potential difference is same. तो हमने लिखा था potential difference across equivalent equal to potential difference across galvanometer. What is potential difference? Potential difference is I into R. So IS R equivalent equal to IG resistance of galvanometer. By Ohm's law V equal to IR होता है. By Ohm's law V equal to IR है. So if by Ohm's law V equal to IR, तो potential drop across resistance REQ, इसको मैं VEQ बोल रहा हूँ. तो VEQ इसको मैं बोल रहा हूँ just for the sake of notation. This is IS REQ, where I is current through resistance, R equivalent के थ्रू जो करंट है वो IS है. Similarly, potential drop across
galvanometer is Vg, that is Ig into G, where Ig is current through galvanometer and G is resistance of galvanometer. Okay, right? But as you know, ये हम लोगों ने डिराइव ही किया है बुक्स में. So but if you remember, I total current I is Ig plus Is, if you remember this. अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास Ig दिया है लेकिन Is नहीं है हमारे पास. Therefore I will write down Is equal to I minus Ig, और इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. Therefore from 1 and 2 I will have I minus Ig into R equivalent equal to Ig into G. Okay, मतलब I into R equivalent minus Ig into R equivalent equal to Ig into G. मतलब I R equivalent equal to Ig कॉमन, क्योंकि ये टर्म राइट हैंड साइड पे जाके प्लस हो जाएगी, तो Ig कॉमन, G plus R equivalent. Okay, therefore I will have I equal to Ig upon G plus R equivalent upon R equivalent. So that is equal to Ig की वैल्यू हमको दी है, कितनी दी है Ig की वैल्यू? They are telling you 1 milliampere, 1 milliampere. G की वैल्यू कितनी है? 20. R equivalent कितना है? 4 upon this. Okay, तो 24 by 4 मतलब 6 milliampere is the maximum current. ऑप्शन नंबर ए. तो 6 milliampere का मैक्सिमम करंट होगा. वैसे you don't have to do this much. अगर आपको फॉर्मूलाज याद होंगे तो डायरेक्टली भी कर सकते हो. तो थ्योरी में हमने सिर्फ नोटेशन अलग रखे थे, तो मैं आपको थ्योरी के नोटेशंस के हिसाब से बता देता हूँ. तो व्हेन वी वर लर्निंग हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, हमने एक गैल्वेनोमीटर लिया था G, उसका रेजिस्टेंस G है बेसिकली, एंड देन यू हैव कनेक्टेड a small resistance in parallel. Okay, जिसको आप जो भी नाम दो, यू कैन कॉल इट एज S, शंट. शंट मतलब पैरेलल रेजिस्टेंस. तो सिर्फ नोटेशन का डिफरेंस है यहाँ पे, दैट्स इट. ओके, तो ऐसा है कि टोटल करंट I इज एंटरिंग, Ig उस गैल्वेनोमीटर से जाएगा और बचा हुआ Is शंट के थ्रू जाएगा. फिर आपने बोला था पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस शंट इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर बाय ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR. तो Is इंटू S इक्वल टू Ig इंटू G, बट हमने लिखा था टोटल करंट इज Is प्लस Ig, तो Is equal to I minus Ig, and therefore you will have I minus Ig into S equal to Ig into G. Therefore Is minus Ig into S equal to Ig into G, and therefore Is equal to Ig common S plus G, and therefore you will have I equal to Ig S plus G by S. तो वही है. अब अगर आपको ये याद होता फॉर्मूला, इफ यू रिमेंबर दिस, तो डायरेक्टली भी कर सकते थे. Ig 1 मिली एम्पियर है तो मिली एम्पियर में पहले लिख देता हूँ. S की वैल्यू शंट में 4 रेजिस्टेंस थे 16 ओम के, तो उनका इक्विवेलेंट आ जाएगा 4, और गैल्वेनोमीटर का जो था वो 20 था अपॉन 4, तो 24 by 4 is again 6 मिली एम्पियर. तो ऐसा ही आप सॉल्व कर सकते हो, डजंट मैटर. This is according to the notation that we have used in theory classes. Okay. Next question. Two wires A and B of equal length are connected in left and right gap of a meter bridge. Null point is obtained at 40 centimeters from left end. Diameter of wire A and B are in the ratio 3:1. The ratio of specific resistance of A to that of B is. तो अब let's go through Wheatstone's bridge first, फिर हम लोग मीटर ब्रिज पे आएंगे. तो पहले तो Wheatstone's bridge क्या था वो समझ लो आप. तो आपके पास एक quadrilateral अरेंजमेंट होता है, समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे you have resistance, यहाँ पे you have resistance. Okay, so
मोर और लेस लाइक दिस। तो ऐसा आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3 एंड दिस इज R4। तो A, B, C एंड D, यहाँ पे आप पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैटरी EMF का सोर्स कनेक्ट कर रहे हो। यू आर कनेक्टिंग अ सोर्स ऑफ EMF थ्रू अ की। मैं की नहीं दिखाने वाला हूँ। तो हियर यू आर कनेक्टिंग सोर्स ऑफ EMF, पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट कर रहे हो आप बेसिकली। तो इन बिटवीन B एंड D you have a galvanometer G। ओके, तो अब होता क्या है, अंडर बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन मतलब पोटेंशियल एट B इक्वल टू पोटेंशियल एट D। तो इस केस में मान लो यहाँ पे करंट I आ रहा है, उसमें से I1 करंट यहाँ गया और I2 करंट यहाँ पे जाएगा, बिकॉज जंक्शन पॉइंट है A, तो करंट स्प्लिट होगा। और जैसे ही I1 करंट B पे पहुंचा और I2 करंट D पे पहुंचा, तो B से D या D से B देयर इज नो करंट। व्हाई नो करंट? क्योंकि करंट का फ्लो होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। देखो फिजिक्स में एक चीज बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग है कि कॉन्सेप्ट्स मोर और लेस सेम है। जैसे विंड कब फ्लो होता है? विंड तब फ्लो होता है जब दो पॉइंट्स में प्रेशर डिफरेंस हो। हीट कब फ्लो होता है? जब दो पॉइंट्स में टेम्परेचर डिफरेंस हो। करंट कब फ्लो होता है? जब दो पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस हो। अगर यहाँ पे B और D पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है तो करंट मिलेगा ही नहीं गैल्वेनोमीटर से, बिकॉज नो करंट विल पास थ्रू इट। तो IG इक्वल टू 0 हो जाएगा बेसिकली, देयर इज नो करंट टू गैल्वेनोमीटर। फिर आप किरचॉफ्स लूप लॉ लगाते हो इस लूप पे और इस लूप पे, एंड देन आपको एक एक इक्वेशन मिलता है जिसको आप डिवाइड करते हो और आपको मिल जाता है R1 by R2 इक्वल टू R3 by R4। ये है बैलेंसिंग कंडीशन। ओके, अब मीटर ब्रिज क्या होता है? तो मीटर ब्रिज एक्चुअली व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, सिर्फ देयर इज समथिंग डिफरेंट हियर। तो ऐसा है कि यू हैव टू L-shaped कॉपर स्ट्रिप्स, मेटालिक, आपके पास दो मेटालिक स्ट्रिप्स हैं यहाँ पे L-shaped। You have two L-shaped metallic strips और उसके बीच में आपके पास एक स्ट्रेट कॉपर स्ट्रिप है। So you have a copper strip over here, straight one, and you have a metallic strip L-shaped over here. ऐसा है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एज यू कैन सी दो गैप बन गए, एक लेफ्ट गैप बन गया, एक राइट गैप बन गया। अब नॉर्मली हम लोग लेफ्ट गैप में अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं नॉर्मली, मतलब यहाँ पे वी विल पुट अ रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हम लोग राइट गैप में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं। फिर A से B you have a more or less you have a straight wire over here, you have a wire over here. So what we are doing is this is, let us say, point A and I will write this as point C. यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस X है, यहाँ पे एक नॉन रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस R है, यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको मैं B पॉइंट बोल रहा हूँ इंटेंशनली। यहाँ से आप गैल्वेनोमीटर निकालोगे और एक जॉकी के थ्रू वायर को टच करोगे और नीचे यहाँ पे बैटरी वगैरह कनेक्ट करके रखा हुआ है, समथिंग लाइक दिस। ओके, अब होता क्या है, एज यू नो कि हर एक वायर का रेजिस्टेंस है, खुद का रेजिस्टेंस है। तो हम पहले गैल्वेनोमीटर का जो जॉकी है वो A पॉइंट पे टच करेंगे और फिर C पॉइंट पे टच करेंगे। तो दोनों केसेस में गैल्वेनोमीटर का रीडिंग जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब क्या, जब मैंने A पॉइंट पे टच किया तो मुझे मान लो मुझे -1 एम्पियर दिख रहा है
मैंने सी पॉइंट पे टच किया तो मुझे +1 एम्पियर दिख रहा है, तो इट शुड बी ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ 0। तो अब क्या करेंगे फिर हम लोग, ऐसा अगर है तो हम ए से स्लाइड करते जाएंगे और हम एक पॉइंट ढूंढ लेंगे जहां पे गैल्वेनोमीटर शोज 0 रीडिंग। तो गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 होना मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसको डी पॉइंट बोलेंगे और इस पॉइंट को बी बोल देंगे, राइट। नाउ एज यू नो ये मीटर ब्रिज है। मीटर ब्रिज मतलब इस लेंथ वायर ऑफ, ये जो वायर है ना एसी, इसका लेंथ है 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। ओके, उसमें से मैं मान लेता हूं कि ये LX हो गया, राइट। आपके ऊपर है, आप इसको LX बोलो या सिर्फ X बोलो, डजंट मैटर। दिस लेंथ इज X, तो दिस इज 100 माइनस X, क्योंकि 1 मीटर का वायर था, उसमें से एक पार्ट अगर X है तो बाकी फिर 100 माइनस X सेंटीमीटर है वो। ओके, राइट। तो एज यू सी यू कैन कंपेयर नाउ, A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो यू कैन एक्चुअली कंपेयर हियर। यहाँ पे भी A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस है, उसको R1 बोला है, तो इसको मैं R1 बोल रहा हूँ। फिर B और C के बीच में एक रेजिस्टेंस है R2, यहाँ भी B पॉइंट और C पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस है दिस वन, जिसको हम लोग R2 बोलते हैं। ओके, उसके बाद आप देख रहे हो कि AD में एक रेजिस्टेंस है R3, तो यहाँ भी A से D इस पॉइंट के बीच में जो वायर है उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा और वो रेजिस्टेंस बन जाएगा R3 बन जाएगा। सिमिलरली D और C के बीच में रेजिस्टेंस है R4, तो यहाँ पे भी D और C के बीच में जो वायर का लेंथ है उसका रेजिस्टेंस है वो बन जाएगा R4। तो बेसिकली मीटर ब्रिज जो है ये व्हीटस्टोन्स ब्रिज ही है, ओनली द डिफरेंस इज दैट यहाँ पे हमने एक वायर यूज करके उसको मीटर ब्रिज बनाया है, उसका वायर का लेंथ है 1 मीटर, इसलिए मीटर ब्रिज बोल रहे हैं। तो प्रिंसिपल जो है मीटर ब्रिज का, इट इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। तो दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हीटस्टोन्स नेटवर्क पता होगा तो ही मीटर ब्रिज समझेगा, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, है ना, तो लेंथ ऑफ A एंड लेंथ ऑफ B आर इक्वल, आर कनेक्टेड इन द लेफ्ट एंड राइट गैप ऑफ मीटर ब्रिज। मतलब यहाँ पे एक वायर जिसका लेंथ A है, तो यहाँ पे A वायर कनेक्ट किया है, X की जगह पे मैं A बोल रहा हूँ, ठीक है, A, और राइट गैप में B, है ना, वायर कनेक्ट किया है जिनका लेंथ इक्वल है। नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, मतलब X की वैल्यू 40 सेंटीमीटर, लेफ्ट एंड से मेजर कर रहे हो, लेफ्ट एंड से मेजर कर रहे हो तो आपको X मिल गया यहाँ पे 40 सेंटीमीटर। मतलब आपको ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है 100 माइनस X, that is 60 centimeter. Okay, right. Diameters of the wire A and B are in the ratio. So diameter of A to that of B is 3:1. The ratio of specific resistance is, तो सबसे पहले specific resistance मतलब क्या वो बताना चाहिए, resistivity. You remember basics of 11th standard. Resistance of any wire is proportional to its length and inversely proportional to its area. राइट, तो लेट मी मेक सम स्पेस फर्स्ट। तो यहाँ पे अब व्हीटस्टोन्स नेटवर्क की हमको जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना था, तो मैंने वहां पे लिखा था। नाउ आई विल रिमूव दिस, ओके, आई विल कीप दिस ओवर हियर। तो अब आपको याद होना चाहिए कि रेजिस्टेंस वाज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम फ्रॉम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रो L by A, where rho is called as specific resistance or resistivity of the material of wire. तो रो इक्वल टू RA by L, right? Obviously you know that वायर है, उसका क्रॉस सेक्शन है सर्कुलर, कोई भी वायर होता है सिलेंड्रिकल इन शेप, जब मैं उसको काटूंगा तो क्रॉस सेक्शन दिखेगा सर्कुलर, मतलब एरिया इज पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज पाई आर स्क्वायर और R इज नथिंग बट D/2, तो पाई D स्क्वायर बाई 4L। ये आपको मिल गया रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, R पाई
d²/4l। लेकिन क्योंकि लेंथ दोनों वायर का सेम दिया है, मतलब लेंथ कांस्टेंट है, देयरफॉर यू कैन से व्हिच इंप्लाइज rho is proportional to r_d². Why? Obviously for this reason that length is constant. Length is constant. Okay, good, right? So now how do you find out resistances? क्योंकि मुझे रेशो चाहिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, मतलब मुझे रो ए बाय रो बी चाहिए, है, दैट इज आर ए बाय आर बी डी ए बाय डी बी का स्क्वायर। अब डी ए बाई डी बी 3:1 है, आर ए बाई आर बी कैसे फाइंड करोगे आप? रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए टू दैट ऑफ बी का रेशो। तो एग्जैक्टली यहाँ पे यू कैन यूज बैलेंसिंग कंडीशन, ओके, बट अंडर बैलेंस्ड कंडीशन। अंडर बैलेंस्ड कंडीशन मैंने इसलिए वो सब बताया था आपको, व्हीटस्टोन्स नेटवर्क R1 by R2 that is equal to R3 by R4, ओके, और यही कंडीशन व्हीटस्टोन्स नेटवर्क ब्रिज में आता है, RA by RB इक्वल टू R3, मतलब सिग्मा x अपॉन सिग्मा 100 माइनस x। अभी मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं? देखो ऐसा है, हमको चाहिए रेजिस्टेंस और x है डिस्टेंस, x इज लेंथ, x इज नॉट रेजिस्टेंस। तो सिग्मा क्या है? सिग्मा है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। 1 मीटर में कितना रेजिस्टेंस? मान लो 1 मीटर में अगर आपके पास 2 ओहम का रेजिस्टेंस है, 1 मीटर में 2 ओहम का रेजिस्टेंस है, राइट, और मेरे पास एक वायर है जिसका लेंथ x है, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? तो मैं उसको सिग्मा से मल्टीप्लाई करूंगा, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, resistance per unit length multiplied by length will give you resistance of that piece of wire। अगर नहीं समझे तो मैं वापस बता रहा हूँ, सिंपल सी चीज है। सिग्मा क्या होता है हमको? सिग्मा गिव्स अस रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में कितना रेजिस्टेंस। अगर आप इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हो, इसको अगर आप x से मल्टीप्लाई कर देते हो लेंथ से, तो ये आपको रेजिस्टेंस ऑफ ए पार्ट मिल जाएगा, नॉट ए पार्ट, सॉरी R3, बिकॉज हमने इसको R3 बोला है, तो ये आपको R3 मिल जाएगा बेसिकली। सिमिलरली रेजिस्टेंस R4 कैसे मिलेगा? लेंथ कितना है? 100 माइनस x इंटू सिग्मा, ओके, तो ये 100 माइनस x इंटू सिग्मा है, तो 100 माइनस x इंटू सिग्मा, this is what you have, okay। तो this is where you need to understand कि रेजिस्टेंस कैसे निकालते हो आप। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को आप लेंथ से मल्टीप्लाई करते हो। सो रिमेंबर इन बोथ केसेस सिग्मा इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। 1 मीटर में कितना, तो मैं अगर सिग्मा को लेंथ से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे उतने पीस ऑफ वायर का रेजिस्टेंस मिलता है। तो यहाँ भी वही किया है, R3 को हमने क्या लिखा है? सिग्मा x कहां से आया? यहाँ से आया। R4 को हमने क्या लिखा है? सिग्मा 100 माइनस x कहां से आया? तो यहाँ से आया। तो यू शुड नो दिस बेसिक्स, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सिग्मा सिग्मा कैंसिल, ओके, तो आपको मिल गया RA बाय RB इक्वल टू x कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर अपॉन 100 माइनस x कितना है? 60 सेंटीमीटर, मतलब कितना है? 2/3। तो ये जो है ये इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे, और dA by dB तो पता ही है हमको। तो what I'll do is I'll call this equation number 1, this is 2, this is 3। So substituting 1 and 3 in equation number 2, तो ये important है, you have to understand this कि कहाँ से कौन सा पैरामीटर हम फाइंड कर रहे हैं बेसिकली, okay। So substituting equation number 1 and 3 in 2, therefore you will have rho A by rho B equal to RA by RB जो 2/3 आया है, और उसके बाद DA by DB वो 3/1 स्क्वायर था, तो 2/3 into 9/1, 1 जा 3 जा 6/1 आंसर आना चाहिए।
6:1 ऑप्शन नंबर सी। और ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन था सीईटी का, सो इट वाज अ गुड क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a potentiometer wire is 4 meter long and potential difference of 3 volt is maintained between the ends. The EMF of the cell which balances against a length of 100 centimeter of the potentiometer wire is. Okay, तो अगर आपको याद होगा कि पोटेंशियोमीटर वायर, हम पोटेंशियोमीटर में क्या करते थे, हाँ पोटेंशियोमीटर सिर्फ एक वायर ही होता है। इस वायर को हम एक टेबल पे फोल्ड करके लगाते थे। क्यों? क्योंकि नॉर्मली ये 10 मीटर लॉन्ग होता है नॉर्मली। तो यहाँ पे तो दे आर टेलिंग यू दैट दिस वायर इज अराउंड 4 मीटर लॉन्ग। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक दिस वायर इज 4 मीटर लॉन्ग। और कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। पोटेंशियोमीटर इज जस्ट बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ की कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये। ओके, फिर यहाँ से आप ए पॉइंट से आप एक एक्सटर्नल सेल को कनेक्ट करते हो, बैटरी या सेल जो भी बोलो, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ मतलब। फिर यहाँ पे एक की होता है जो नॉर्मली हमेशा क्लोज्ड होता है। फिर नीचे यहाँ पे आपके पास एक रियोस्टेट होता है RH, और you put a pointer over here from point B. अब ऐसा है कि हमारे पास एक एक्सटर्नल सेल है, हमारे पास एक एक्सटर्नल सेल है। उस एक्सटर्नल सेल का हमको अगर EMF मेजर करना था तो what we did was, हम लोगों ने एक्सटर्नल सेल को यहाँ ऊपर कनेक्ट कर दिया था, something like this. Okay, so you put a cell over here, है ना, you put a cell over here. तो यहाँ पे आप एक सेल लगा देते हो, something like this, और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r होता है। मैं एग्जैक्ट थ्योरी में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ आपको कि what you do is, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाते हो and then you put a key over here, so on so forth। ये रेजिस्टेंस r है, यहाँ K1 है। फिर आप यहाँ से गैल्वेनोमीटर के थ्रू एक वायर लेते हो, and then again you touch this jockey at various points such that you get zero current in the galvanometer। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको याद होना ही चाहिए कि बेसिक क्या था। एक गैल्वेनोमीटर है, मतलब गैल्वेनोमीटर इज जस्ट अ वायर, सॉरी पोटेंशियोमीटर इज जस्ट अ वायर, दैट्स इट। एक वायर है, अराउंड 10 मीटर लॉन्ग होता है, यहाँ पे 4 मीटर लॉन्ग दिया है। तो ए से बी वायर का जो लेंथ है ना, उसको 4 मीटर बोला है, दैट्स इट। और पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया है, मतलब यहाँ पे ये 3 वोल्ट है। ओके, द EMF ऑफ सेल विच बैलेंसेस मतलब ये एक सेल मैंने कनेक्ट कर दिया और उसके बाद हम लोग गैल्वेनोमीटर को अलग अलग पॉइंट पे, पहले यहाँ टच करके देखा, फिर यहाँ टच करके देखा, फिर यहाँ टच करके देखा, एंड देन यहाँ टच करके देखा। अलग अलग पॉइंट पे हमने पॉइंटर को, जॉकी के पॉइंटर को कांटेक्ट किया है और हमको एक पॉइंट ऐसा मिला P जहाँ पे करंट टू गैल्वेनोमीटर बिकम्स 0 एंड दैट लेंथ AP इज 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर। और इसको हमने टेक्स्ट बुक में लिखते टाइम पे L नाम दिया था थियरी में। ओके, आपको पूछा है कि ये जो E1 सेल है इसका कितना EMF होगा, दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू। तो क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली सिंपल, प्रोवाइडेड कि आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। तो इफ यू नो बेसिक्स देन इट इज एक्सट्रीमली सिंपल। ओके, तो अगर आपको याद है हमने E1 इक्वल टू एक पैरामीटर हम लोग लिखते हैं वहां पे बुक्स में, जिसको हम लोग K बोलते हैं, where K is potential gradient। What is potential gradient? Potential per unit length। तो how much is potential per unit length, ऐसा लिखते हैं, and to length L।
तो E1 इसके, इसको L1 बोल देता हूँ, L1। तो EMF ऑफ सेल जब फाइंड करते हो तो इट टर्न्स आउट टू बी दिस, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है एक्सटर्नल पोटेंशियल अपॉन टोटल लेंथ। तो ये जो मैंने यहाँ पे E लिखा है, इसको मैं E से V कर देता हूँ नाम। V टोटल लेंथ ऑफ द वायर कैपिटल L into L1 is the balancing length। तो कुछ नहीं है, EMF cell is potential gradient into length, potential gradient into length, potential gradient into length, ये बताना चाहिए। E1 is potential gradient into length। What is potential gradient is V by L, and what is V? 3 volt। What is total length of wire? 4। What is balancing length? 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, 1 मीटर, ओके, वो 1 मीटर है। What is 3/4? 0.75। So 0.75 volt is the answer। खत्म। So in reality, questions on this particular topic, this particular chapter are easy। सिर्फ कॉन्सेप्ट याद नहीं होने की वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो what I am expecting is, and it was already assumed कि जब आप एक नए चैप्टर का CET का लेक्चर अटेंड करते हो तो आप उस चैप्टर का थियरी रिवाइज करके ही आ रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं समझेगा। आई एम टेलिंग यू वेरी वेरी क्लियरली। और इसलिए पहले से ही लेक्चर्स, थियरी क्लासेस, रिवीजन क्लासेस हमारे हुए हैं। सो यू आर सपोज टू वॉच दोस थियरी रिवीजन लेक्चर्स फर्स्ट एंड देन अटेंड दिस क्लास, क्योंकि अदरवाइज कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। Which of the following instrument is not a direct reading instrument? सिंपल है, पोटेंशियोमीटर। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज अ डायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में वो नीचे डायरेक्ट रीडिंग मिलता है, लिखा होता है डिजिटल मीटर पे। एमीटर भी डायरेक्टली करंट मेजर करता है, उस पर नीचे आपको करंट का रीडिंग मिल जाएगा। वोल्ट मीटर में भी आपको वोल्टेज का डायरेक्टली रीडिंग मिलता है। पोटेंशियोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच डज नॉट गिव यू डायरेक्ट रीडिंग। क्यों? क्योंकि यार आपको पोटेंशियोमीटर में आपने 3-4 केसेस सीखे हैं। पहले तो आप बोलते हो बाय इंडिविजुअल सेल मेथड, मतलब E1 by E2 इक्वल टू L1 by L2। फिर आप बोलते हो बाय कॉम्बिनेशन मेथड, E1 plus E2 अपॉन E1 minus E2 इक्वल टू L1 by L2। तो दोनों ही केस में कहाँ डायरेक्ट रीडिंग मिलता है? तो हम लोग यहाँ पे L1 L2 मेजर करते हैं, E1 और E2 में से एक पता होता है, दूसरा फाइंड करते हो। तो यहाँ पे डायरेक्टली रीडिंग नहीं मिलता है, हम लोग को डायरेक्टली रीडिंग नहीं मिलता है, हमको एक फॉर्मूला में लेंथ की वैल्यू डाल के सॉल्व करके निकालना पड़ता है। वेरएज एमीटर हो या वोल्ट मीटर हो, उसमें डायरेक्टली नीचे या तो एनालॉग मीटर होगा या तो डिजिटल मल्टीमीटर होगा, उस पर डायरेक्टली रीडिंग दिखता है। हाँ, 2 एम्पियर करंट, 2.1 एम्पियर करंट, सो ऑन सो फोर्थ। तो पोटेंशियोमीटर डायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। यू कैन नॉट डायरेक्टली रीड, you have to measure the length and then put it into formula to find out required values, parameters. In conversion of a moving coil galvanometer into an ammeter of required range, the resistance of ammeter so formed is। तो ये वही चीज आ गई जो हमने पहले देखी थी। हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, हम इसको एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक रेजिस्टेंस लगाएंगे इन शंट। So we will connect a resistance in shunt, in parallel matlab। So you have a galvanometer, sorry, so you have a galvanometer over here with resistance G, then you have a small resistance in parallel in shunt S, okay। तो आपको पूछा है कि आपको अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना है तो रेजिस्टेंस एमीटर का कितना होगा? तो ये दोनों पैरेलल में है ना, टू इन पैरेलल, सिंपल थिंग। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 1/S plus 1/G, क्योंकि पैरेलल में है। तो देयरफॉर यू विल हैव 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू S plus G upon S into G। देयरफॉर R इक्विवेलेंट विल बी SG upon S plus G। हो गया ऑप्शन नंबर बी। No big deal, simple question।
कुछ नहीं है। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने एक शंट में पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाया था। आपको पूछा है कि एमीटर बनने के बाद टोटल रेजिस्टेंस कितना, तो टोटल रेजिस्टेंस इतना SG/S+G, खत्म। यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट पैरेलल रेजिस्टेंस पैरेलल का इक्विवेलेंट, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, two cells having unknown EMF E1 and E2, where E1 is greater than E2, are connected in potentiometer circuit so as to assist each other. Let me see if I find that diagram, क्योंकि इसको ड्रॉ करने में टाइम बहुत जाएगा। इलेक्ट्रो RD, just a minute. Oscillations. Give me a minute. So if I have it, that will be better. If we don't have it, then I have to do it again. Okay, looks like yes, here we go. ये वाला डायग्राम है वो। ओके, ओके, सो मैंने अभी अभी आपको बताया कि आप पोटेंशियोमीटर में अननोन EMF फाइंड कर सकते हो। जैसे आप मीटर ब्रिज में या फिर व्हीटस्टोन्स नेटवर्क से आप अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हो, वैसे ही आप पोटेंशियोमीटर से अननोन EMF फाइंड करते हो। उसमें दो मेथड थे, एक तो डायरेक्ट मेथड था। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि ये जो वायर AB है, इसके ऊपर आप E1 और E2 डायरेक्ट ऐसा कनेक्ट कर देते हो। तो यहाँ पे E1 कनेक्ट कर दिया सेल, यहाँ पे E2 कनेक्ट कर दिया, आप ऐसा कनेक्ट करते हो। ऑफ कोर्स यहाँ पे की होगा, यहाँ पे भी की होगा, सो ऑन सो फोर्थ। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। इसको बोलते हो बाय इंडिविजुअल सेल मेथड या फिर डायरेक्ट मेथड। अदरवाइज व्हाट यू डू इज यू मेक अ स्ट्रक्चर समथिंग लाइक एक क्वाड्रिलेटरल की स्ट्रक्चर बनता है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। सो यू हैव अ की स्ट्रक्चर ओवर हियर, की A, उसके बाद की C, की D और की B। अब ऐसा है कि what you do is, अगर आपने A और B को क्लोज रखा है, C और D को आपने ओपन किया है, तो अज्यूम A और B ये क्लोज्ड है, C और D ये ओपन है। तो क्या होगा कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ E1 इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ E2। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे उसको E2 का पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब E2 जो है वो E1 को हेल्प कर रहा है टू सर्कुलेट करंट। इसको बोलते हैं E2 इज असिस्टिंग E1। ओके, तो इस केस में वी राइट टोटल पोटेंशियल डिफरेंस या फिर टोटल EMF एज E1 प्लस E2। तो अब क्या बोला है, टू सेल्स हैविंग अननोन EMF E1 एंड E2 आर कनेक्टेड इन पोटेंशियोमीटर सर्किट सो एज टू असिस्ट ईच अदर। मतलब ऐसा है, A और B दो जो कीज है वो क्लोज्ड है, C और D कीज जो है वो ओपन है। द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 490 सेंटीमीटर। तो पहले केस में हमने जो नल पॉइंट ढूंढा है, ओके, दैट नल पॉइंट, मतलब आप क्या करते हो, आप गैल्वेनोमीटर का जो जॉकी है उसको आप अलग अलग पॉइंट पे टच कर रहे हो। सो यू आर एक्चुअली टचिंग the pointer, the jockey at different points, and you are obtaining P point that is called as null point, such that length of AP, जिसको हम L1 बोलते हैं, turns out to be कितना बोला है, 490 सेंटीमीटर। ओके, राइट, फ्रॉम द हायर पोटेंशियल एंड, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट A मतलब
यू आर मेजरिंग फ्रॉम पॉइंट ए नॉट फ्रॉम पॉइंट बी, ऐसा बोल रहे हैं वो, ठीक है। When cell E2 is connected so as to oppose cell E1, अब हमने क्या किया, अब हमने इसको और इसको कर दिया ओपन, हमने B और D को कर दिया क्लोज, तो आई एम क्लोजिंग B एंड D। अब क्या होगा, आप देखो, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ E1 इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ E2, तो हम लोग बोलते हैं कि E2 जो है ये E1 को अपोज कर रहा है, और इस केस में आपने जब जॉकी को अलग अलग पॉइंट्स पे टच किया, उस केस में आपको जो लेंथ मिला, दैट लेंथ इज AP डैश, उसको हम बोलते हैं L2 एंड दैट इज 90 सेंटीमीटर। The ratio of the EMFs of the two cell is, तो आपको E1 by A2 पूछा है, आपको E1 by A2 पूछा है, this is what they're asking you. Now you should know, you should remember that in such case जो आप एक फॉर्मूला बनाते हो, in case of this method, combination method, you get a formula where E1 plus A2 upon E1 minus A2 is L1। चलो मैं डायरेक्टली फाइनल फॉर्मूला लिख देता हूँ, सो आई विल नॉट डू कंपोनेंडो डिविडेंडो, मैं फाइनल फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो फाइनल फॉर्मूला जो मिलता है दैट इज E1 by A2 इक्वल टू L1 plus L2 by L1 minus L2। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला दैट यू गेट। जिनको नहीं पता ये कहाँ से आया तो मैं बता देता हूँ कि कैसे आता है ये। सो हाउ डू यू गेट टू दिस फॉर्मूला, आपको मिलेगा E1 plus E2 इक्वल टू सिग्मा L1 और E1 minus E2 इक्वल टू सिग्मा L2। आप कैंसिल कर देते हो, where sigma is potential gradient, तो आप इसको सिग्मा नहीं बोलना चाहते हो तो मत बोलो, के बोलो, doesn't matter, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो you get this equation basically, E1 plus A2 upon E1 minus E2 equal to L1 by L2। फिर आप कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करते हो, तो यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो, and after you apply componendo and dividendo you get E1 by E2 equal to L1 plus L2 upon L1 minus L2। आपको रेशियो चाहिए था, L1 कितना है 490 सेंटीमीटर, L2 कितना है 90 सेंटीमीटर, तो 490 plus 90 upon 490 minus 90, this is 580 by 400। तो इसको आप सॉल्व करो, it should be obviously 1 point something, क्यों, क्योंकि दिख ही रहा है 58 by 40, 60 by 40 is 1.5, 60 by 40 1.5 आता है, तो 60 जो छोटा नंबर है ऊपर, तो टोटल 1.5 थोड़ा कम आएगा, ऑप्शन नंबर सी। वैल्यूज भी ऐसे दी है, 0.6 हो ही नहीं सकता, कैसे होगा, न्यूमरेटर में बड़ा नंबर है, 0.1 हो नहीं सकता, न्यूमरेटर में बड़ा नंबर है, 5.33 हो नहीं सकता, क्योंकि 5.33 होने के लिए न्यूमरेटर में 200 के ऊपर आना चाहिए, तो एक ही ऐसा ऑप्शन है 1.45, तो ये तो बिना कैलकुलेशंस के ही आप कर सकते थे। You could have safely went ahead without calculating because 58 by 40 is nothing but 1.45, approximately 1.5. Okay, good. So that's it for today. As I told you, मैं थोड़े कम क्वेश्चंस लेने वाला हूँ इसके, क्योंकि concepts भी मुझे बताने हैं, so with concepts we will do this particular chapter। I don't want to rush, ज़्यादा घाई करेंगे तो maybe you may not understand things। So now what you should do for today is, I mean before we go ahead with more questions in the next session, अगर आपको ये concepts नहीं पता है तो पहले ये concepts आप एक बार रिवाइज कर लो। So we'll stop here for today.